السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم لوگ تعلیم الاسلام حصہ 3 کا پہلا شعبہ پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ تعلیم الاسلام حصہ 3 کے دوسرے شعبہ کو پڑھیں گے۔ تعلیم الاسلام حصہ 3 دوسرا شعبہ، جس کا مشہور نام ہے تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم والا مہربان ہے۔ وضو کے باقی مسئلے کا بیان۔ سوال: وضو کیے بغیر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بلکہ کچھ عالموں نے تو ایسے آدمیوں کو جو جان بوجھ کر وضو کیے بنا نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ سوال: نماز کے لیے وضو کی شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: قرآن مجید کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور گٹوں تک پاؤں دھو لو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ وضو کے فرضوں کے باقی مسئلے کا بیان۔ سوال: دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکے؟ جواب: اتنی پانی ڈالنا کہ بدن کے حصے پر پانی بہہ کر 1-2 بوندیں ٹپک جائے، دھونے کی کم سے کم حد ہے۔ اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے، جیسے کہ کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اتنا تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھو لیا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ سوال: بدن کے جن حصوں کا وضو میں دھونا فرض ہے انہیں کتنی بار دھونے سے فرض ادا ہو جائے گا؟ جواب: 1 بار دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ 3 بار دھونا سنت ہے، اور 3 بار سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ سوال: کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب: ماتھے کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال: جن حصوں کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب: اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی آدمی کے 6 انگلیاں ہوں تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز زیادہ پیدا ہو جائے اور اس جگہ پر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ہاتھ کو پانی سے تر یعنی بھگو کر کے کسی حصے پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال: سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر بچی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب: نیا پانی لینا زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد بچی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک بار مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے حصے سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔ سوال: اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئی اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح پورا ہوگا یا نہیں؟ جواب: ہو گیا۔ سوال: وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ اور منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ سوال: وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کتروائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: اگر کسی کا ہاتھ کوہنی کے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے اور کوہنی کو دھونا فرض ہے۔ وضو کی سنتوں کے باقی مسئلے کا بیان۔ سوال: اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا، بارش میں کھڑا رہا اور وضو کے سب حصوں پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ سوال: وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ سوال: نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ حرج بھی نہیں۔ سوال: وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے؟ جواب: صرف یہ نیت کرے
कि वजू पर वजू करने की फजीलत यानी बड़ाई और सवाब हासिल करने के लिए वजू करता हूँ। सवाल, वजू में बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ना चाहिए या नहीं? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ना या बिस्मिल्लाहिल अलील अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लामी या बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तीनों तरह पढ़ना जायज़ है। सवाल, मिसवाक करना कैसा है और उसका क्या तरीका है? जवाब, मिसवाक करना सुन्नत मुअक्किदा है। इसका बहुत बड़ा सवाब है और इसमें बहुत फायदे हैं। मिसवाक किसी कड़वे पेड़ की जड़ या लकड़ी की होनी चाहिए, जैसे पीलू की जड़ या नीम की लकड़ी। मिसवाक एक बालिश से ज्यादा ना रखनी चाहिए। धोकर मिसवाक करे और धोकर रखे। पहले दाईं तरफ के दांतों में फिर बाईं तरफ के दांतों में करनी चाहिए। 3 बार मिसवाक करना और हर बार नया पानी लेना चाहिए। सवाल, हलक में पानी डालकर सफाई करना यानी गरगरा करना कैसा है? जवाब, वुजू और गुस्ल में गरगरा सुन्नत है, लेकिन रोजे की हालत में न करना चाहिए। दाएं हाथ से कुल्ली करना चाहिए। सवाल, नाक में पानी डालने का क्या तरीका है? जवाब, दाएं हाथ में पानी लेकर नाक से लगाए और सांस लेकर पानी नाक में चढ़ाए, लेकिन इतना न खींचे कि दिमाग तक चढ़ जाए। रोजेदार को चाहिए कि वह सिर्फ हाथ से पानी नाक में चढ़ाए, सांस से न खींचे। कुल्ली करना और नाक में पानी डालना दोनों सुन्नत मुअक्किदा है। सवाल, दाढ़ी के किस हिस्से का खिलाल करना उंगलियों से तरी पहुंचाना सुन्नत है? जवाब, दाढ़ी के नीचे अंदर के बालों का खिलाल करना सुन्नत है और जो बाल चेहरे की तरफ चेहरे की खाल से करीब है उन सबका धोना फर्ज है। सवाल, उंगलियों का खिलाल किस तरह करना चाहिए? जवाब, हाथों की उंगलियों का खिलाल इस तरह करे कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर हिलाएं और पांव की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छंगुलियों से करे यानी छोटी उंगली से करे। दाएं पांव की छंगलियां यानी छोटी उंगली से शुरू करके बाएं पांव की छंगुलियां यानी छोटी उंगली पर खत्म करे। सवाल, सारे सर का मसह किस तरह करना चाहिए? जवाब, दोनों हाथ पानी से तर यानी भिगो करके सर के दोनों तरफ माथे के बालों की जगह पर रखो और हथेलियों की उंगलियों समेत गुद्दी तक ले जाओ और फिर वापस लौटाओ। इसका ख्याल रखो कि सारे सर पर हाथ फिर जाए। सवाल, कानों की मसह के लिए नया पानी लेना चाहिए या नहीं? जवाब, नहीं। सर के मसह के लिए जो पानी लिया था वही काफी है। अंदर कानों का मसह शहादत की उंगली से करना चाहिए और बाहर कान का मसह अंगूठे से करना चाहिए। वुजू में जो मुस्तहब है उनके बाकी मसले का बयान। सवाल, दाईं तरफ से शुरू करना सुन्नत है या मुस्तहब? जवाब, कुछ आलिमों ने इसे सुन्नत कहा है और कुछ ने मुस्तहब बताया है। सवाल, गर्दन पर मसह करने की क्या सूरत है? जवाब, गर्दन पर दोनों हाथों की उंगलियों को पीठ की तरफ से मसह करना चाहिए। गले पर मसह करना बिदअत यानी सुन्नत के खिलाफ है। सवाल, वुजू में और क्या क्या आदाब है? जवाब, वुजू के आदाब बहुत से हैं, जैसे छंगलिया यानी छोटी उंगली का सिरा भिगोकर कानों के सुराख में डालना। नंबर 2, नमाज के वक्त से पहले वुजू कर लेना। नंबर 3, आजा वुजू के हिस्सों को धोते वक्त मलना। नंबर 4, अंगूठी या छल्ले को हिलाना। नंबर 5, दुनिया की बातें न करना। नंबर 6, जोर से पानी मुंह पर न मारना। नंबर 7, ज्यादा पानी न बहाना। नंबर 8, हर हिस्से को धोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 9, वुजू के बाद दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 10, वुजू के बाद कलिमा शहादत और यह दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अजअल्नी मिनत तवाबीन वजअल्नी मिनल मुततहिरीन। नंबर 11, वुजू से बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। नंबर 12, वुजू के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू पढ़ना वगैरह। वुजू तोड़ने वाली बातों के बाकी मसले का बयान। सवाल, नापाक चीज बदन से निकलकर कितनी बह जाए तो वुजू टूटता है? जवाब, कोई नापाक चीज बदन से निकलकर उस जगह की तरफ जिसका वुजू या गुस्ल में धोना फर्ज है थोड़ी सी भी बह जाए तो वुजू टूट जाता है। सवाल, आंख में खून निकलकर आंख के अंदर बहा बाहर नहीं निकला तो वुजू टूटा या नहीं? जवाब, नहीं टूटा, क्योंकि आंख के अंदर का हिस्सा न वुजू में धोना फर्ज है और न गुस्ल में। सवाल, अगर जख्म पर खून दिखाई दिया उसे उंगली या कपड़े से पोंछ लिया, फिर दिखाई दिया फिर पोंछ लिया, कई बार ऐसा किया तो वुजू टूटा या नहीं? जवाब, यह देखो कि अगर खून पोंछा न जाता तो इतना था कि बह जाए या नहीं। अगर इतना था कि बह जाता तो वुजू टूट गया और अगर इतना नहीं था तो वुजू नहीं टूटा। सवाल, कै में क्या चीज निकलने से वुजू टूटेगा? जवाब, कै में पित्त या खून या खाना या पानी निकले और मुंह भर के हो तो वुजू टूट जाएगा और अगर खालिस बलगम निकले तो वुजू नहीं टूटेगा। सवाल, अगर थोड़ी थोड़ी कै कई बार हुई तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर एक मतली से कई बार कै हुई और वह कुल मिलाकर इतनी है कि मुंह भर जाए तो वुजू टूट जाएगा। हाँ, अगर एक मतली से थोड़ी कै हुई फिर वह मतली जाती रही और दोबारा मतली पैदा होकर थोड़ी कै हुई तो इन दोनों बार की कै को न जोड़ा जाएगा और वुजू नहीं टूटेगा। सवाल, बदन में किसी जगह फुंसी है
इसमें से खून या पीप का धब्बा कपड़े में लग जाता है तो कपड़ा पाक है या नापाक? जवाब, अगर खून या पीप निकलकर बहने के लायक नहीं है, कपड़ा लगने से धब्बा आ जाता है तो वह कपड़ा पाक है, लेकिन फिर भी धोना ज्यादा अच्छा है। सवाल, कै अगर मुंह भर के न हो तो वह नापाक है या नहीं? जवाब, नहीं। सवाल, जोंक ने बदन में चिपट कर खून पिया और मर गई, या मच्छर या पिस्सू ने काटा तो उससे वजू टूटेगा या नहीं? जवाब, जोंक के खून पीने से वजू टूट जाएगा, चाहे छुराने के बाद काटे हुए जख्म से खून न बहे, क्योंकि जोंक इतना खून पी जाती है कि अगर वह बदन से निकलकर उसके पेट में न जाता तो वह बह जाता, और मच्छर पिस्सू के काटने से वजू नहीं टूटता, क्योंकि ये बहुत थोड़ा खून पीते हैं जो बहने के लायक नहीं होता। सवाल, किस तरह की नींद से वजू नहीं टूटता? जवाब, खड़े खड़े सो जाने या बगैर सहारा लगाए हुए बैठकर सोने या नमाज की किसी हालत में सोने से वजू नहीं टूटता। जैसे सजदे में सो गया या कादा बैठे हुए में सो गया तो वजू नहीं टूटेगा। सवाल, क्या कोई आदमी ऐसा भी है कि सो जाने से उसका वजू नहीं टूटता? जवाब, हाँ, नबियों का वजू नींद से नहीं टूटता, यह उनकी खुसूसियत और खास फजीलत थी। सवाल, क्या नमाज में खिलखिलाकर हंसने से सबका वजू टूट जाता है, और खिलखिलाकर हंसने से क्या मतलब है? जवाब, खिलखिलाकर हंसने से यह मतलब है कि इतनी जोर से हंसे कि उसकी आवाज पास वाले लोग सुन सके। नमाज में खिलखिलाकर हंसने से वजू टूटने की ये शर्तें हैं। नंबर 1, हंसने वाला बालिग मर्द या औरत हो, क्योंकि नाबालिग के जोर से हंसने से वजू नहीं टूटता। नंबर 2, जागते में हंसे, अगर नमाज में सो गया और सोते में जोर से हंसा तो वजू नहीं टूटेगा। नंबर 3, जिस नमाज में हंसा है वह रुकू सजदे वाली नमाज हो, इसलिए जनाजे की नमाज में जोर से हंसने पर वजू नहीं टूटता। सवाल, क्या किसी दूसरे आदमी के सतर पर नजर पड़ जाने से वजू टूट जाता है? जवाब, अपने या किसी दूसरे आदमी के सतर पर जानबूझकर या अनजाने में नजर पड़ने से वजू नहीं टूटता। गुस्ल के बाकी मसले का बयान। सवाल, गुस्ल की कितनी किस्में हैं? जवाब, 3 किस्में हैं। नंबर 1, फर्ज, नंबर 2, सुन्नत, नंबर 3, मुस्तहब। सवाल, फर्ज गुस्ल कितने हैं? जवाब, 6 हैं, और उनका बयान तालीमुल इस्लाम के किसी अगले हिस्से में आएगा। सवाल, सुन्नत गुस्ल कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, 4 हैं, और वे चारों ये है। नंबर 1, जुमा की नमाज के लिए गुस्ल करना। नंबर 2, दोनों ईदों की नमाज के लिए गुस्ल करना। नंबर 3, हज का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना। नंबर 4, अरफात में वकूफ करने के लिए गुस्ल करना। सवाल, मुस्तहब गुस्ल कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब, मुस्तहब गुस्ल बहुत से हैं, जिनमें से कुछ गुस्ल ये हैं। नंबर 1, शाबान के महीने की 15वीं रात में, जिसे शब बारात कहते हैं, गुस्ल करना। नंबर 2, अरफा की रात में गुस्ल करना, यानी जिलहिज की 8वीं तारीख की शाम के बाद आने वाली रात में। नंबर 3, सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की नमाज के लिए गुस्ल करना। नंबर 4, नमाज इस्तिस्का यानी बारिश के लिए दुआ वाली नमाज के लिए गुस्ल करना। नंबर 5, मक्का मुअज्जमा या मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के लिए गुस्ल करना। नंबर 6, मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल देने वाले का गुस्ल करना। नंबर 7, काफिर का इस्लाम लाने के बाद गुस्ल करना। सवाल, अगर गुस्ल करना जरूरी हो और दरिया में डुबकी लगा ले या बारिश में खड़ा हो जाए और सारे बदन पर पानी बह जाए तो गुस्ल अदा हो जाएगा या नहीं? जवाब, हाँ, अदा हो जाएगा, लेकिन कुल्ली करना और नाक में पानी डालना जरूरी है। सवाल, गुस्ल की हालत में किबले की तरफ मुंह करना जायज है या नहीं? जवाब, अगर गुस्ल के वक्त बदन नंगा हो तो किबले की तरफ मुंह करना नाजायज है, और सतर छुपा हुआ हो तो हर्ज नहीं। सवाल, सतर खोलकर गुस्ल करना कैसा है? जवाब, गुस्ल खाना में या किसी ऐसी जगह पर जहां दूसरे आदमी की नजर उसके सतर पर न पड़े नंगे बदन नहाना जायज है। सवाल, गुस्ल में कितने मकरूह हैं? जवाब, नंबर 1, पानी ज्यादा बहाना। नंबर 2, सतर खुला होने की हालत में बात करना। नंबर 3, किबले की तरफ मुंह करना। नंबर 4, सुन्नत के खिलाफ गुस्ल करना। सवाल, अगर गुस्ल से पहले वजू न किया तो गुस्ल के बाद नमाज के लिए वजू करना जरूरी है या नहीं? जवाब, गुस्ल के अंदर वजू भी हो गया फिर वजू करने की जरूरत नहीं। मोजों पर मसह करने के बाकी मसले का बयान। सवाल, मसह की मुद्दत का किस वक्त से हिसाब किया जाए? जवाब, जिस वक्त से वजू टूटा है उस वक्त से 1 दिन 1 रात या 3 दिन 3 रात मसह जायज है। मिसाल के लिए मान लिया जाए कि जुमा के सुबह को वजू करके मोजे पहने और उसका यह वजू जोहर का वक्त खत्म होने पर टूटा, तो यह आदमी अगर मुकीम है तो हफ्ते सनीचर की जोहर के वक्त तक मसह कर सकता है, और मुसाफिर है
तो पीर यानी सोमवार के दिन की जोहर तक मसह कर सकता है। सवाल, मसह किन किन चीजों से टूटता है? जवाब, जिन चीजों से वुजू टूटता है उनसे मसह भी टूट जाता है और उनके अलावा नंबर 1 मसह की मुद्दत गुजर जाने, नंबर 2 मोजे उतार देने और नंबर 3 तीन उंगलियों के बराबर मोजे फट जाने से भी मसह टूट जाता है। सवाल, अगर वुजू होने की हालत में मोजा उतार दिया या वुजू होने की हालत में मसह की मुद्दत पूरी हो गई तो क्या हुक्म है? जवाब, इन दोनों हालतों में सिर्फ पाँव धोकर मोजे पहन लेना काफी है और पूरा वुजू कर लेना मुस्तहब है। सवाल, अगर मुसाफिर ने मोजों पर मसह करना शुरू किया और एक दिन एक रात के बाद घर आ गया तो क्या करे? जवाब, मोजे उतार दे और नए सिरे से मसह करना शुरू करे। सवाल, अगर मुकीम ने मसह करना शुरू किया और फिर सफर में चला गया तो क्या करे? जवाब, अगर एक दिन रात पूरी होने से पहले सफर किया तो 3 दिन 3 रात तक मोजे पहने रहे और मसह करता रहे और एक दिन एक रात पूरी होने के बाद सफर किया तो मोजे उतार कर फिर से मसह शुरू करे। सवाल, अगर मोजा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ हो तो क्या हुक्म है? जवाब, एक मोजा कई जगह से थोड़ा थोड़ा फटा हुआ हो तो उसे जमा करके देखो, अगर कुल मिलाकर 3 उंगलियों के बराबर हो जाए तो मसह नाजायज है और कम रहे तो जायज है, और दोनों मोजे फटे हुए हो और दोनों की कुल फटन 3 उंगलियों के बराबर हो लेकिन हर एक की फटन 3 उंगली से कम हो तो मसह जायज है। नजासत हकीकिया और उसके पाक करने के बाकी मसले का बयान। सवाल, चमड़े की चीजें जैसे मोजे, जूती, बिस्तर बंद वगैरह अगर इनमें जिस्मदार यानी गाढ़ी नापाकी लग जाए तो किस तरह पाक होती है? जवाब, जमीन या किसी और चीज पर रगड़ देने से पाक हो जाती है, शर्त यह है कि रगड़ने से नजासत का गाढ़ापन और असर जाता रहे। सवाल, अगर इन्हीं चीजों में पेशाब, शराब या इसी तरह की और कोई नजासत लग जाए तो किस तरह पाक की जाए? जवाब, पानी या किसी और बहने वाली पाक चीज से जो नजासत के असर को दूर कर दे धोकर पाक होगी, यानी सिवाय जिस्मदार नजासत के और जो नजासतें लग जाए तो रगड़ने से चमड़े की चीजें पाक न होगी बल्कि धोना जरूरी है। सवाल, चाकू, छुरी, तलवार और लोहे या चांदी या तांबे, एल्युमिनियम वगैरह की चीजें नापाक हो जाए तो धोए बिना पाक होगी या नहीं? जवाब, लोहे की चीजें जबकि वे साफ हो, जंग न हो और चांदी, सोने, तांबे, एल्युमिनियम और पीतल वगैरह धातुओं की चीजें और शीशे की चीजें और हाथी दांत या हड्डी की चीजें और चीनी के बर्तन, ये सब चीजें जबकि साफ हो और इन पर बेल बूटा वगैरह खुदे हुए न हो, इस तरह रगड़ने से कि नजासत का असर जाता रहे पाक हो जाती है। सवाल, बेल बूटे खुदे हुए न होने से क्या मतलब है? जवाब, यानी इनके ऊपर ऐसे निशान न हो जिनसे जिस्म ऊंचा नीचा हो जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों में रगड़ने के बाद भी नजासत बाकी रह जाने का एहतमाल है। हाँ, सिर्फ रंग के निशान हो तो ये चीजें रगड़ने से पाक हो जाएगी। सवाल, जमीन पर निजासत जैसे पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होगी? जवाब, जमीन जब सूख जाए और निजासत का असर, रंग, बू, मजा जाता रहे तो पाक हो जाती है। सवाल, मकान या मस्जिद वगैरह में पक्की ईंटों या पत्थर के फर्श या दीवार पर नजासत लग जाए तो किस तरह पाक की जाए? जवाब, ईंट और पत्थर जो इमारत में लगे हुए हों सूख जाने और नजासत का असर जाते रहने से पाक हो जाते हैं। सवाल, जो चीजें कि धोने में निचोड़ी नहीं जा सकती जैसे तांबे के बर्तन या बिछाने के मोटे गद्दे, तो उनको पाक करने के लिए किस तरह धोया जाए? जवाब, ऐसी चीजें जिनको निचोड़ना नामुमकिन या मुश्किल है, इनके धोने का तरीका यह है कि एक बार धोकर छोड़ दे, जब पानी टपकना बंद हो जाए तो दूसरी बार धोकर छोड़ दे, जब पानी टपकना बंद हो जाए तो तीसरी बार धो डालो, पाक हो जाएगी। मगर धोने में जितना भी रगड़ा जाए रगड़ना जरूरी है ताकि नजासत निकालने में अपनी ताकत भर कोशिश हो जाए। सवाल, मिट्टी के बर्तन नापाक हो जाएं तो पाक हो सकते हैं या नहीं? जवाब, मिट्टी के बर्तन भी धोने से पाक हो जाते हैं और उनके पाक करने का वही तरीका है जो इससे पहले सवाल जवाब में लिखा गया। सवाल, नापाक चीज जैसे गोबर जलकर राख हो जाए तो वह राख पाक है या नापाक? जवाब, नापाक चीज जब जलकर राख हो जाए तो वह राख पाक है। सवाल, घी में चूहा गिरकर मर गया तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, घी अगर जमा हुआ हो तो चूहा और उसके आसपास का घी निकाल डालो, बाकी घी पाक है, और अगर घी पिघला हुआ हो तो सारा घी नापाक है। सवाल, नापाक घी या तेल किस तरह पाक किया जाए? जवाब, नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर उबालो, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए इसे उतार लो और 3 बार इसी तरह करो तो वह घी या तेल पाक हो जाए।
इस्तिंजे के बाकी मसले का बयान। सवाल, इस्तिंजे की कौन कौन सी सूरतें मकरूह हैं? जवाब, नंबर 1, किबले की तरफ मुंह या पीठ करके इस्तिंजा करना। नंबर 2, ऐसी जगह इस्तिंजा करना कि किसी आदमी की नज़र इस्तिंजा करने वाले के सतर पर पड़ती हो, मकरूह है। सवाल, पखाना पेशाब करने की हालत में क्या क्या बातें मकरूह है? जवाब, नंबर 1, किबले की तरफ मुंह या पीठ करके पखाना पेशाब करना। नंबर 2, खड़े होकर पेशाब करना। नंबर 3, तालाब, नहर या कुएं के अंदर पेशाब करना। नंबर 4, उनके किनारे पर पखाना पेशाब करना। नंबर 5, मस्जिद की दीवार के पास। नंबर 6, कब्रिस्तान में पखाना पेशाब करना। नंबर 7, चूहे के बिल या किसी सुराख में पेशाब करना। नंबर 8, पेशाब पखाना करते वक्त बातें करना। नंबर 9, नीची तरफ बैठकर ऊंची जगह पर पेशाब करना। नंबर 10, आदमियों के बैठने या रास्ता चलने की जगह पखाना पेशाब करना। नंबर 11, वुजू या गुस्ल करने की जगह में पेशाब पखाना करना। ये सारी बातें मकरूह हैं। पानी के बाकी मसले का बयान। सवाल, धूप से गर्म हुए पानी से वुजू जायज है या नहीं? जवाब, जायज है लेकिन बेहतर नहीं। सवाल, वुजू करते वक्त बदन से पानी के कतरे बर्तन में गिरे तो इस पानी से वुजू जायज है या नहीं? जवाब, वुजू करते वक्त जो पानी बदन से गिरता है अगर बदन पर नजासत हकीकिया न हो तो वह मुस्तामल यानी इस्तेमाल किया गया पानी कहलाता है। मुस्तामल पानी गैर मुस्तामल जो इस्तेमाल नहीं किया गया पानी में मिल जाए तो उसका हुक्म यह है कि जब तक मुस्तामल पानी की मिकदार गैर मुस्तामल पानी से कम रहे उस वक्त तक उससे वुजू और गुस्ल जायज है, और जब मुस्तामल पानी की मिकदार गैर मुस्तामल पानी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो फिर उससे वुजू और गुस्ल नाजायज है। सवाल, अगर पानी में कोई पाक चीज मिल जाए जैसे साबुन या जाफरान तो इससे वुजू जायज है या नहीं? जवाब, पानी में पाक चीज मिलने से एक दो वस्फ यानी रंग, बू या मजा बदल जाने पर भी वुजू जायज रहता है। हाँ, जब तीनों वस्फ रंग, बू और मजा बदल जाए और पानी गाढ़ा हो जाए तो वुजू नाजायज हो जाता है। सवाल, अगर तालाब या हौज शरीयत के गज के हिसाब से 2 गज चौड़ा और 50 गज लंबा हो, या 4 गज चौड़ा और 25 गज लंबा, या 5 गज चौड़ा और 20 गज लंबा हो तो वह बहते पानी के हुक्म में होगा या नहीं? जवाब, हाँ, वह बहते पानी के हुक्म में है। सवाल, अगर हौज का खुला हुआ मुंह शरीयत के नाप से कम है लेकिन नीचे का हिस्सा उसका बहुत बड़ा है तो वह बड़े हौज और बहते पानी के हुक्म में है या नहीं? जवाब, अगर हौज 10 गज लंबा 10 गज चौड़ा है लेकिन उसके चारों तरफ या किसी एक दो तरफ से उसका मुंह छुपा दिया है तो जिस चीज से छुपाया है अगर वह पानी से ऊंची और अलग रहती है तो वह हौज ठीक है और बहते पानी के हुक्म में है, और अगर वह चीज जिससे पानी छुपाया है पानी से लगी रहती है तो वह हौज ठीक नहीं और थोड़े पानी का हुक्म रखता है। मतलब यह कि पानी का उतना हिस्सा मोतबर है जितना ऊपर से खुला हुआ हो यानी किसी चीज से लगा हुआ न हो। उसकी नाप शरीयत के हिसाब से होनी चाहिए। अगर खुला हुआ हिस्सा कम है तो नीचे से चाहे जितना ज्यादा हो उसका एतबार नहीं। कुएं के बाकी मसले का बयान। सवाल, अगर कुएं में कबूतर या चिड़िया के बीट गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है? जवाब, कबूतर और चिड़िया के बीट या ऊंट, बकरी, भेड़ की 2-4 मेंगनियों से कुआं नापाक नहीं होता। सवाल, अगर कुएं में काफिर डोल निकालने के लिए उतरा और पानी में गोता लगाया तो कुएं का क्या हुक्म है? जवाब, अगर उस काफिर को कुएं में उतरने से पहले नहला दिया जाए और पाक कपड़ा सतर पर बांधकर कुएं में उतरे तो कुआं पाक है, और उतरने से पहले नहीं नहाया और अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े के साथ उतरा तो कुएं का सारा पानी निकाला जाए क्योंकि काफिर का बदन और कपड़ा अक्सर नापाक ही रहता है। सवाल, अगर कुएं पर कोई खास डोल पड़ा न रहता हो बल्कि लोग छोटे बड़े मुख्तलिफ डोलों से पानी भरते हों तो उस कुएं को पाक करने के लिए किस डोल से पानी निकाला जाए? जवाब, जबकि कुएं पर कोई खास डोल न हो या कुएं का खास डोल बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो तो इन सूरतों में दरमियानी डोल का एतबार है। दरमियानी डोल वह है जिसमें 80 अंग्रेजी रुपए भर के शेर से 3.5 शेर पानी समाता हो। नोट, यहाँ तक तालीमुल इस्लाम के दूसरे हिस्से में आए हुए मसलों में इजाफा था। अब उनसे आगे के मसले शुरू होते हैं। तयम्मुम का बयान। सवाल, तयम्मुम किसे कहते हैं? जवाब, पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज से जो मिट्टी के हुक्म में हो बदन को नजासत हुक्मिया से पाक करने को तयम्मुम कहते हैं। सवाल, तयम्मुम कब जायज होता है? जवाब, जब पानी न मिले या पानी के इस्तेमाल करने से बीमार हो जाने या मर्ज बढ़ जाने का डर हो तो तयम्मुम करना जायज होता है। सवाल, पानी न मिलने की क्या क्या सूरतें हैं? जवाब, जब पानी 1 मील दूर हो या किसी दुश्मन के डर से पानी न ले सकता हो, जैसे घर से बाहर कुआं मौजूद है मगर डर है कि घर से
निकला तो दुश्मन या चोर मार डालेंगे, या कुएं के पास बड़ा भारी सांप फिर रहा है, या शेर खड़ा है, या थोड़ा पानी अपने पास मौजूद है मगर डर है कि अगर उसे वजू में खर्च कर दिया तो प्यास से तकलीफ होगी, या कुआं मौजूद है मगर डोल रस्सी नहीं है, या पानी मौजूद है मगर यह आदमी उठकर उसे ले नहीं सकता और दूसरा कोई आदमी मौजूद नहीं, ये सब सूरतें पानी न होने के हुक्म में दाखिल है। सवाल, बीमार हो जाने के डर का किस हालत में एतबार है? जवाब, जबकि अपने तजर्बे से यह बात यकीन की हद तक पहुंच जाए या किसी बड़े काबिल हकीम, डॉक्टर या वैद्य के कहने से मालूम हो कि पानी के इस्तेमाल करने से बीमार हो जाएगा तो तयम्मुम दुरुस्त है। सवाल, पानी के 1 मील दूर होने से क्या मतलब है? जरा खोल कर बयान करो। जवाब, जब आदमी किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पानी मौजूद नहीं लेकिन इसे किसी के बताने से या अपनी अटकल से इस बात का यकीन हो जाए कि पानी 1 मील के अंदर है तो पानी लाना और वजू करना जरूरी है। मगर जब कोई बताने वाला भी न हो और किसी तरीके से भी पानी का पता न चले या पानी का पता तो चले लेकिन वह 1 मील या इससे ज्यादा दूर हो तो फिर पानी लाना जरूरी नहीं, तयम्मुम कर लेना जायज है। सवाल, तयम्मुम में कितने फर्ज हैं? जवाब, 3 फर्ज है। नंबर 1, नियत करना। नंबर 2, दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर मुंह फेरना। नंबर 3, दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों हाथों को कोहनियों समेत मलना। सवाल, तयम्मुम करने का पूरा तरीका बताओ। जवाब, पहले नियत करो कि मैं नापाकी दूर करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ। फिर दोनों हाथ मिट्टी के बड़े ढेले पर मारकर उन्हें झाड़ो। ज्यादा मिट्टी लग जाए तो मुंह से फूंक दो और दोनों हाथों को मुंह पर इस तरह फेरो कि कोई जगह बाकी न रह जाए। एक बाल बराबर जगह छूट जाएगी तो तयम्मुम जायज न होगा। फिर दूसरी बार दोनों हाथ मिट्टी पर मारो और उन्हें झाड़ कर पहले हाथ की चारों उंगलियां सीधे हाथ की उंगलियों के सिरों के नीचे रख कर खींचते हुए कोहनी तक ले जाओ। इस तरह ले जाने में सीधे हाथ के नीचे की तरफ हाथ फिर जाएगा। फिर बाएं हाथ की हथेली सीधे हाथ के ऊपर की तरफ कोहनी से उंगलियों तक खींचते हुए लाओ और बाएं हाथ के अंगूठे अंदर की तरफ को सीधे हाथ के अंगूठे की पीठ पर फेरो। फिर इसी तरह सीधे हाथ को बाएं हाथ पर फेरो। फिर उंगलियों का खिलाल करो। अगर अंगूठी पहने हुए हो तो उसे उतारना या हिलाना जरूरी है। दाढ़ी का खिलाल करना भी सुन्नत है। सवाल, वजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम जायज है या सिर्फ वजू का? जवाब, दोनों का तयम्मुम जायज है। सवाल, किन चीजों पर तयम्मुम करना जायज है? जवाब, पाक मिट्टी, रेत, पत्थर, चूना, मिट्टी के कच्चे या पक्के बर्तन जिन पर रंग न हो, मिट्टी की कच्ची या पक्की ईंट, मिट्टी या ईंटों या पत्थर या चूने की दीवार, गिरू और मुल्तानी पर तयम्मुम करना जायज है। इसी तरह पाक धूल से भी तयम्मुम करना जायज है। सवाल, किन चीजों पर तयम्मुम नाजायज है? जवाब, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, शीशा, रांग, जस्त, गेहूं, जौ और सब अनाज, कपड़ा, राख, इन सारी चीजों पर नाजायज है। यूँ समझो कि जो चीजें आग में पिघल जाती है या जलकर राख हो जाती है उन पर तयम्मुम नाजायज है। सवाल, पत्थर, चूने या ईंटों की दीवार पर धूल न हो तो तयम्मुम जायज होगा या नहीं? जवाब, जिन चीजों पर हमने तयम्मुम जायज बताया है उन पर गुबार होने की शर्त नहीं है। पत्थर या ईंट या मिट्टी के बर्तन धुले हुए हों जब भी उन पर तयम्मुम जायज है। सवाल, जिन चीजों पर तयम्मुम नाजायज है अगर उन पर धूल हो तो तयम्मुम हो जाएगा या नहीं? जवाब, हाँ, जब इतनी धूल हो कि हाथ मारने से उड़ने लगे या उस चीज पर हाथ रखकर खींचने से निशान पड़ जाए तो तयम्मुम जायज है। सवाल, अगर कुरान मजीद पढ़ने या छूने या मस्जिद में जाने या अजान कहने या सलाम का जवाब देने की नीयत से तयम्मुम किया जाए तो इससे नमाज जायज है या नहीं? जवाब, जायज नहीं। सवाल, नमाज जनाजा या तिलावत के सजदे की नीयत से तयम्मुम किया तो इससे नमाज जायज है या नहीं? जवाब, जायज है। सवाल, अगर पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम कर लिया और नमाज पढ़ ली फिर पानी मिल गया तो क्या हुक्म है? जवाब, नमाज हो गई, अब उसे लौटाने की जरूरत नहीं, चाहे पानी वक्त के अंदर मिला हो या वक्त के बाद। सवाल, तयम्मुम किन चीजों से टूटता है? जवाब, जिन चीजों से वजू टूटता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। हाँ, गुस्ल का तयम्मुम सिर्फ हद से अकबर यानी बड़ी नापाकी से टूटता है और अगर पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था तो वह तयम्मुम पानी पर कब्जा हासिल हो जाने से भी टूट जाता है। और अगर किसी और मजबूरी जैसे बीमारी वगैरह की वजह से तयम्मुम किया था तो उस मजबूरी के जाते रहने
से भी तयम्मुम टूट जाता है। सवाल, एक वक्त की नमाज के लिए तयम्मुम किया तो दूसरे वक्त की नमाज उससे जायज है या नहीं? जवाब, एक तयम्मुम से जब तक वह टूटे नहीं जितने वक्तों की चाहो नमाज पढ़ सकते हो। इसी तरह फर्ज नमाज के लिए जो तयम्मुम किया है इससे फर्ज नमाज और नफिल नमाज और कुरान मजीद पढ़ना और जनाजे की नमाज, तिलावत का सजदा और सारी इबादतें जायज है। सवाल, तयम्मुम की मुद्दत क्या है? जवाब, जब तक पानी न मिले या मजबूरी बाकी रहे तयम्मुम जायज है। अगर इसी हाल में कई साल गुजर जाएं तो कोई हर्ज नहीं। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की किताब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म सीखने और समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।